अभी ये होने के बाद यश वो अभी पहले चल रहा है। क्या हुआ सर? हाँ वही, मेरे को भिजा दिया ना, मैं देख लेता हूँ। हाँ नाउ क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट। Should the parents in India in future be forced to opt for only one child as against the two or many at present arguments? Yes, this is the only way to check the ever increasing population in India. To know this type of pressure tactic is not adopted by any other country in the world. So ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। So you have 5 arguments. Argument number 1, only argument 1 is strong. Only 2 is strong. If either 1 or 2 is strong. If neither 1 nor 2 is strong. And fifth is both are strong. ठीक है? Now can you give the answer for this question to me? Hello? Sir, Hello? both 1 and 2. both 1 and 2 sir. Both 1 and 2. Both 1 and 2, correct? This Yes, is the sir. only way to check ever increasing population in India. And you are saying no, this type of pressure tactic is not adopted by any other country. See, according to me, second one is not strong actually, because this is adopted in China. Correct? Hello? Yes, sir. There. So this is wrong. So only one is strong. Okay? Because one child policy would definitely at least like see what is happening in India right now. India has vaccinated 12 crore or 13 crore of its citizens. United States totally has 30 to 40 crores people. Now see what kind of pressure India has. India has to vaccinate 135 crore plus people. Is that a joke? See, a higher population is good as well as it is also bad. So only argument 1 is strong. Question number 2.
argument, sorry, statement. Should education be brought under the control of the central government like defense? Arguments. 1. No. Education is a state subject and it should remain with the state. Full stop. Yes, this is the only way to establish uniformity in growth of education across the states. Come on, do this. Only second one. Yes, sir. Only second one. Only second one. Yes, sir. Okay. So see, should education? I always tell, don't take your decisions hastily. Okay, in haste. So don't be very fast to jump to a conclusion and don't think questions are easy. Apply your mind and skills. Should education be bought under control of central government like defense? Let us see. No, education is a state subject and it should be remain to the state. Actually, according to me, education is a state subject. It doesn't matter if, see, is it necessary that everyone in India should learn the central syllabus? Then what about the local people who are Telugu speaking? Telugu speaking people can also join CBSE. I'm not saying they cannot join, but there are rural people who want to know about the past glory of their ancestors or their leaders or their culture, correct? CBSE Yes, can sir. provide them about anything about their culture, No. correct or wrong? Can they know about their people better with the CBSE? No. Only state can justify it. So I mean to say, this is the only way to establish uniformity? No. So according to me, what exactly the statement is, which argument is very strong. So I think the education should be a state subject. It should remain with the state. Okay. It should everywhere central should not come. Or else that would be disturbing thing for the regional people. In India, it is not possible. Okay. Now. See, like uniformity, if they want to achieve, they can make a common curriculum. Like, for example, people in CBSE are studying science. So, Telangana students are also studying science. What they study, balancing equations, and in mathematics, whatever they study, state syllabus also studying. In 10 plus 2, you are studying differentiation, integration. These guys are also studying differentiation, integration, circle, system of circles. Everything is there. They are studying. So, uniformity is brought there. But state, it should remain with the state. Okay. So both the questions you did wrong. I don't know. You are very very giving your answer in haste. Statement.
बट सर इन प्रीवियस क्वेश्चन वो ज़्यादा मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव बेस नहीं है, मतलब कोई कुछ और सोचेगा, इट्स नॉट लाइक वी कैन कम टू अ कॉमन जजमेंट। आप अपना व्यू पॉइंट बताओ, मैं देखता हूँ कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। नहीं नहीं सर, मतलब वैसे नहीं, जैसे आप तेलंगाना स्टूडेंट का जैसे एग्जांपल दिए कि स्टेट में नहीं होना कोई भी स्टेट चाहिए। का ले लो, राजस्थान का ले लो, उत्तर प्रदेश का ले लो, सेंट्रल सिलेबस में कहाँ उनके बारे में बता रहे हैं, स्टेट के बारे में कहाँ बता रहे हैं। आप एक स्टेट में रहते हो, उस स्टेट के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से जानोगे तो अच्छा है। दिल्ली के बारे में हम क्या करना है, दिल्ली के बारे में जानकर। दिल्ली तो हमारे सब में हमारे को सब समझ में आ ही रहा है ना, हाँ हाँ। है ना? करेक्ट है कि रॉन्ग है? हम्म। अगर सेंट्रल सिलेबस में होगा तो सब कुछ हिंदी कर देंगे, तो सब हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर नहीं तेलुगु वाले हिंदी समझते नहीं है। सर, सर ऐसा नहीं है, सेंट्रल बोर्ड में तेलुगु और भी होता है सर, सब होते हैं। क्या बोले? सेंट्रल बोर्ड में सीबीएसई में भी तेलुगु या फिर जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं सेंट्रल बोर्ड में भी। मैंने तो देखा नहीं अभी तक। है सर, Yes, आपको sir. मैं It will be there. शीट भेज देता हूँ, उसमें ऑप्शनल हर होगा। लैंग्वेज हाँ, तेलुगु का तो भी मैं क्या एग्जाम बता होता रहा है। हूँ कि यहाँ के जो स्टेट, यहाँ के जो लोग हैं, वो तेलुगु मीडियम पढ़ रहे हैं, तो वो हिंदी, उनको हिंदी कहाँ से आता, तो हिंदी इंग्लिश कहाँ से कंपलसरी आता? नहीं है ना सर, हिंदी हिंदी कंपलसरी नहीं है ना सर। हिंदी तो कंपलसरी है ही हमारे पूरे इंडिया के हर लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है सर, आप रीजनल लैंग्वेज Uh, चूज कर सकते हो। yes, sir. In CBSE, we can choose whatever we want. इफ यू आर You इन इफ can यू आर choose your regional language, but Hindi is also there, na? That is also one of the languages. No, दैट sir. इज द लैंग्वेजेस सर, बट आपके पास ऑप्शन है ना, तो रॉन्ग कैसे हुआ सर? आपके पास तो ऑप्शन है, और क्या? सेंट्रलाइज के बाद आपके पास ऑप्शन है ना, यू कैन टेक तेलुगु इंस्टेड ऑफ हिंदी। Yes, you can take, no problem. But do you think कि एजुकेशन को सेंट्रलाइज करके क्या फायदा हो सकता है आपको? सर सेंट्रलाइज करके यूनिफॉर्मिटी आएगी ना, मतलब पूरे हर यूनिफॉर्मिटी तो मैंने बताया ना आपको कि आप कॉमन करिकुलम करके मैक्सिमम जो भी सब्जेक्ट्स है सब में यूनिफॉर्मिटी मैंने दिखाया ना आपको। डिफरेंशिएशन यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन सेंट्रल सिलेबस में भी है, ये चैप्टर्स स्टेट में भी है, तो सब में यूनिफॉर्मिटी तो आ रहा है। लेकिन हम सीबीएसई के वैसा बुक्स नहीं में सर, हमारे तेलुगु हीरोज के बारे में कहाँ देख रहे हैं, तेलुगु सर रीजन के बारे में ज्यादा कहाँ डीपली पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? डीपली नहीं पढ़ रहे हैं ना। सर जो सीबीएसई और ये जो बोर्ड्स हो, अगर हम सिर्फ अच्छा ठीक ओवरऑल एजुकेशन की बात करें तो ठीक है, वी कैन कंसिडर सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मतलब ओवरऑल एजुकेशन के सिस्टम से बता रहा हूँ। बट सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स कंपेयर नहीं कर सकते सर, एटलीस्ट टिल नहीं, 12। मैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सेंट्रल के हाथ में दे दिया जाए तो वो रीजन के साथ एक बायस होगा, यानी उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट्स को लिखेंगे नहीं लिखेंगे इसके बारे में हमें नहीं पता। एक स्टेट के लोकल लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं स्टेट के बारे में, वो उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से करिकुलम बनाएंगे। वैसे अभी टैक्स सिस्टम क्यों नहीं करते ये लोग, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी क्यों है? सर ताकि स्टेट के पास भी कुछ रेवेन्यू रहे और कुछ मैं वही पावर्स। बोल रहा हूँ ना, तो हर तो स्टेट के पास भी कुछ चीजें रिजर्व रहनी चाहिए ताकि वो अपने लोगों को अपनी ही स्टेट के बारे में बेहतर बता सके। पर टैक्स भरना पड़ता है सर स्टेट को। क्या बोले? टैक्स आई गेस स्टेट को भी भरना पड़ता है, जो भी उनको टैक्स मिलता है उनका भी टैक्स सेंटर को देना पड़ता है शायद, नहीं सर? देखो, एक जीएसटी अब स्टेट से क्या लेगा, जब एक प्रोडक्ट ले रहा है कोई पर्सन तो उसमें स्टेट जीएसटी सेंट्रल जीएसटी कट जा रहा है। अब स्टेट क्या पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को? नहीं जीएसटी नहीं सर, दूसरे टैक्स। मैंने तो जीएसटी के बारे में कॉमन बात बताया, दूसरे टैक्सेस क्या हो सकते हैं? अगर कोई टैक्सेस बताओ मुझे, स्टेट के क्या टैक्सेस है सेंट्रल के लिए, कोई एग्जांपल दो, करो गूगल सर्च। नहीं नहीं वो अरे करो करो।
पानी की आवाज कहाँ से आ गया? इसका आंसर बताओ। सर सेंसिबल रैगिंग मतलब एक कम अमाउंट में रैगिंग वी कैन से, राइट? Normal सेंसिबल rank. मतलब कम अमाउंट में नहीं, मतलब एक सेंसिबल कंट्रोल्ड रैगिंग, मतलब सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा। बोथ ऑफ देम आई गेस. या yes, you say both of them. Sensible ragging helps college boys to help step in manhood. हाँ ठीक है, this is good. And teaches them to take trifles in a good humor. मतलब छोटे मोटे मजाक तो ले सकते हैं। टॉर्चर जो होता है रैगिंग से, वो बहुत डेंजरस है, और वो लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? Yes, sir. तो बोथ आर ट्रू। कोई भी तरीके से रैगिंग का सपोर्ट तो नहीं कर सकते पूरी तरीके से, बट इंट्रोडक्शन करना, छोटा मोटा हाय हेलो करना, उसमें कोई रैगिंग नहीं है। छोटा मोटा मजाक कर सकते हैं आप, किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। सो लाइक आई वुड से बोथ द स्टेटमेंट्स ई वुड बी स्ट्रांग। चलो लास्ट क्वेश्चन। Should all फॉरेन बैंक्स। banks. So these are the part of logical reasonings. यस, अभी तुमको लिंक्स भेजूंगा, बहुत बहुत सॉलिड क्वेश्चंस पूछते हैं। बड़े इजी लगते हैं लेकिन इजी नहीं होते हैं। क्लैट तो पूरा पेपर इससे भरा था। हाँ सर, वो दोनों आंसर सही लगते हैं ना एक्चुअली मोस्टली. हाँ, इसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। सर आप जो भेजे उनके साथ प्लीज आंसर की भी भेजना, मतलब रीजंस के साथ अगर हो तो. हाँ मैं भेजता हूँ ना, क्यों नहीं, आज भेज देता हूँ। Okay, do this. Only one, sir.
Only one. Only first one is strong. First one is strong. Only first is strong. Okay. Yes, Dhanush, you tell. Yes, sir. Only one. Yes. Dhanush. Yes, sir. One bill answer. Only one. So the answer, should all foreign banks be asked to close down their operations in India? No, this will have an adverse effect in Indian economy. That is okay because jobs will be lost. Yes, this is the only way to make the Indian banks survive and prosper. Very tricky situation. What to do in this case? Sir, because it's written, it's the only way. We cannot say that it is the only way. Mm, uh, actually, should foreign banks be asked to close down their operations? They know this will have an adverse effect on India. See, I don't think foreign banks अगर close करते हैं तो Indian economy पे adverse effect गिरता है क्योंकि we have our own nationalized banking system. Correct? Yes, sir. See, if the foreign banks are not operating in India, अभी Citibank जा रहा है और बहुत सारे बैंक्स इंडिया में नहीं है तो हमारे कंट्री को क्या फर्क पड़ेगा? वी हैव मेनी बैंक्स, एसबीआई है हमारे पास, एचडीएफसी है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल, बहुत सारे बैंक है और छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स भी है. सो आई डोंट थिंक closing down foreign banks will have adverse effects on Indian economy. According to me ऐसा लग रहा है. सर, हाँ बोलो. पर सर जो मतलब रिसेंट रिसर्च है वो तो यही बोलती है कि जो फॉरेन बैंक्स है दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन एन इकोनॉमी. लाइक फॉरेन बैंक मतलब डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है. एंड जो मेन इम्पैक्ट है दैट इज रिलेटेड टू एफडीआई एट इन द होम कब नेशन. बोला ऐसा नहीं है बोल के, लेकिन अगर फॉरेन बैंक्स अगर बंद कर देते हैं तो क्या इंडिया में बैंकिंग नहीं है क्या? हमारे पास इनफ बैंक्स नहीं है क्या? हम बैंकिंग तो क्वेश्चन है. के पर्सपेक्टिव, हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या बोल रहा है? शुड फॉरेन बैंक्स बी आस्क्ड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया? अगर फॉरेन बैंक्स को बोल दिए कि तुम बंद कर दो तो एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि नो, एक आर्ग्यूमेंट है, दिस विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो हमको देखना है ये स्ट्रांग आर्गुमेंट है क्या. ये तो वीक आर्गुमेंट लगता है क्योंकि हमारे पास खुद का भी बैंक है ना. खुद के बैंक्स तो है सर, पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और हैं, और या फिर कॉस्ट टू इनकम या क्रेडिट तो रेशियोज फॉरेन डायरेक्ट हैं. इन्वेस्टमेंट का मतलब मालूम है क्या होता है? पूरा आपके जितना तो नहीं सर. अरे नहीं 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 भैया, मैं मेरे से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी कुछ कम ही मालूम है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है तो कोई भी सेक्टर में कर सकती है, बैंकिंग में भी कर सकती है. तुम्हारा नॉलेज करेक्ट ही है, कोई गलत नहीं है. प्लीज, मैं बस यही और एक्स्ट्रा जानना चाह रहा हूँ. तो एफडीआई हम वेलकम करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा और अगर हम बोल दें बंद कर दें तो हम क्या नहीं, हमारा काम रुक जाएगा या नहीं चल सकता है? सर चलेगा, पर उसके कारण जो लोकल बैंक्स होंगे उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना सर, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं होगा. क्यों? लोकल बैंक्स में भी आपस में बहुत कंपटीशन है, प्राइवेट बैंक्स भी है हमारे पास. होगा सर, बट एक फॉरेन से अलग कंपटीशन होता है. वो तो इंटरनल कंपटीशन हो गया, वो एक अलग चीज है. वो एक एक्सटर्नल के साथ कंपटीशन होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग ना. नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे कंट्री के अंदर में अगर एक भी फॉरेन बैंक नहीं है तो मेरा कंट्री नहीं चलता क्या? Definitely what.
चलता सर, पर इकोनॉमी पे इफेक्ट तो गिरता ना सर। चलेगा सही, पर इफेक्ट भी तो गिरेगा ही सर। हाँ नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया के पास अपना खुद का एक सिस्टम है, ठीक है ना, वो अपना फाइनेंशियल बिजनेस का केयर ले सकते हैं, ठीक है। और यस सर। लाइक थोड़ा बहुत मतलब इंडियन बैंक्स और अच्छा सरवाइव भी हो जाएंगे, फॉरेन बैंक्स नहीं रहेंगे तो, ठीक है ना। हम्म। और अगर मतलब पूरे के पूरे बैंक्स की बात कर रहे हैं ना, देखो अगर हम फॉरेन बैंक्स को बंद भी करते हैं तो हमारे पास इतने बैंक हैं कि हमारा सिस्टम अच्छा चल भी सकता है। और उल्टा हमारे बैंक्स तो कुछ ज्यादा ही है, फॉरेन बैंक्स आने से वो ज्यादा और बेचारे मर्ज होना पड़ रहा है उनको, करेक्ट। हमारे पास तो इतने बैंक से पूछो मत। अच्छा अगर हम यस दिस इज द ओनली वे टू मेक द इंडियन बैंक सर्वाइव एंड प्रॉस्पर, ऑफ कोर्स अगर हम उनको बंद कर दें तो ये प्रॉस्पर भी कर देंगे, सर लेकिन पर नहीं नहीं, अगर प्रॉस्पर। अगर वो है तो भी प्रॉस्पर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो मेरे हिसाब से दोनों भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्ट्रांग नहीं है। दोनों स्ट्रांग है कि नहीं है? हेलो। हेलो। यस सर। अगर मैं इंडिया में पूरे फॉरेन बैंक्स बंद कर देता हूं तो मेरे कंट्री को एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट मतलब अगर मेरे पास वो सेक्टर ही नहीं है तो पूरा इफेक्ट पड़ जाएगा, मेरे को पूरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है। लेकिन मेरे पास तो एस्टैब्लिश बैंकिंग सिस्टम है, मेरा एपेक्स बैंक है, सब कुछ है। तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, और बैंक्स खुल जाएंगे और लोगों को फायदा मिल जाएगा और लोगों को मौका मिल जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट ये बोलना कि अगर फॉरेन बैंक्स बंद कर देंगे तो इंडियन बैंक सरवाइव करेंगे, नहीं, उनके साथ भी कर सकते हैं। वो रहे तो भी कर रहे हैं ना प्रॉस्पर, कंपटीशन मोड में। दोनों भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है, नीदर वन नॉट। ओके। ओके। यस यस। नहीं सर, मैं तो अभी भी यही समझता हूँ सर, आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग सर। नहीं तो मेरे को तुम इसका आंसर जस्टिफाई करके दो। पहले बात, एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है? टोटल डाउनफॉल। हाँ, एडवर्स का मतलब क्या है? सर एडवर्स का मतलब एक मतलब काफी काफी गहरा नहीं, मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं मतलब, ठीक है, गूगल में एक बार देख के बताओ। प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुल, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। तो आप मेरे को क्या बता रहे हो कि मतलब फॉरेन बैंक्स को अगर मैं बंद करने के लिए बोल दूं तो इसका मेरे कंट्री में क्या इम्पैक्ट होगा, एडवर्स हार्मफुल क्या होगा, हार्मफुल कैसे हो जाए, क्या हार्म होगा मेरे कंट्री को? सर अनफेवरेबल ही है ना सर, है तो आप देखो, अगर फॉरेन तो बैंक से मेरे आपको मेरे बैंकिंग सिस्टम के लिए तो फेवरेबल है ना, हाँ मेरे मेरे कंट्री के बैंकिंग के लिए तो फेवरेबल है। मेरे कंट्री को अगर 10 बैंक की जरूरत है, 50 पड़े हुए तो वेस्ट है ना, 40 को बंद कर देना अच्छा है। हाँ सर, पर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉरेन बैंक की भी इधर लिखा है ऑल फॉरेन बैंक्स। मैं कब मना करा भैया, मैं तो बोल रहा हूँ एफडीआई भी अच्छा है, मेरे इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है आर्ग्यूमेंट का। नहीं नहीं, दैट आपके पास आंसर में यही लिखा है क्या सर? मतलब आपके पास आंसर्स में जो प्रॉपर आंसर है उसमें क्या लिखा है? मेरे पास जो आंसर लिखा है वो यही है, दोनों भी रॉन्ग है, तभी तो मैं तुमसे जस्टिफिकेशन मांग रहा हूँ, तुम करेक्ट हो तो करेक्ट करेंगे बोल के। सर मैं तो अभी भी यही लगता है फर्स्ट वाला ही करेक्ट है सर। नहीं, ये क्या बोलता है कि इंडिया हैज इट्स ओन नेशनलाइज्ड बैंक्स, है हमारे पास। यस कितने सर। नाम चाहिए उतने बताता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा है हमारे पास, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है हमारे पास, और बहुत निकल जाएंगे, और क्या क्या है। बोलो और बैंक बोलो, स्टेट बैंक बोलो नेशनलाइज्ड, इलाहाबाद बैंक है, और बोलो। अर्बन बैंक। अर्बन बैंक है, आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, अब तो पूछो मत, प्राइवेट एक्सिस है, बहुत बैंक है हमारे पास। बस है हमारे को क्या होना, कितना होना।
उनके ब्रांचेस हर गली में खुल गए थे बस। ऑलरेडी इंटरनेशनल बैंक्स हमारे पास खुल के बंद भी हो गए, चले भी गए, बहुत सारे नहीं चल रहे। सिटी बैंक भी बंद हो गया। अगर पूरे बैंक्स बंद हो गए तो हम नहीं चलते क्या? क्या होता मैं बोलूं, वो बैंक्स बंद होने के बाद उनके स्टाफ हमारे इंडिया के बैंक्स में शिफ्ट हो जाते हैं, और क्या होता? शिफ्ट तो हो जाते हैं सर, बट बहुत ईज रहती है ना। मेरे कंट्री को क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मेरी कंट्री को तो मेरी कंट्री में सिर्फ एफडीआई नहीं आ रहा है बस, ठीक है ना, लेकिन मेरे कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को क्या प्रॉब्लम है? तो इसका आंसर देख लो। इंडिया हैज इट्स ओन नेशनलाइज्ड बैंक्स टू टेक केयर ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस। मैं तो फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में देख रहा हूँ ना। नेट पे मिलेगा सर इसका आंसर? अरे भैया, आप किधर भी खोज कर मिल जाएगा। ये बैंक पीयू का क्वेश्चन। तो आपको मैं जब आंसर भी बता दिया हूँ कि आंसर डी है, फिर आप इंटरनेट बोल रहे हो, मैं तो समझ नहीं। अरे सर मेरे को अभी भी वही लग रहा है सर। तो मैं आप बोल रहा हूँ ना, डी आंसर है। मैं क्या बना के थोड़ी बोल रहा हूँ। ओके सर। आप मेरे को जस्टिफाई कर दो ना फिर। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे कंट्री के अंदर में इतने बैंक्स हैं, और अभी मेरे कंट्री में सिटी बैंक रिसेंटली अपना ऑपरेशन क्लोज कर दिया। क्या फर्क पड़ रहा है हमारे कंट्री को? क्या हो रहा है? क्या खाली बैंकिंग सेक्टर से ही खाली इंडिया को एफडीआई आता है क्या? दूसरे सेक्टर से? अच्छा सोच लो, बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई बैन है इंडिया में, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप बोलो? अरे बोलो भाई। क्या बोलूं सर? मैं कंट्री के अंदर में बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई बैन है। हाँ। अभी कम से कम चाइना के 10 बैंक्स इंडिया में आना चाहते हैं, उनको कंट्री अलाउड नहीं कर रहा। क्या फर्क पड़ रहा हमको? नहीं अभी है इससे नहीं। पहले तुमको पता है, चाइना का एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक में 1% शेयर लिया तो कितना लफड़ा हो गया मालूम है तुम्हारे को पिछले साल? नहीं सर। नहीं तो नो न्यूज पढ़ो। सर। तो चाइनीज बैंक्स इंडिया में आने को रेडी, उनको आने नहीं दे रहे। क्या फर्क पड़ता है हमारे को? और हमारे कंट्री में कौन सा इंटरनेशनल बैंक है इतना बड़ा जो एचएसबीसी है? वो तो इन्वेस्टमेंट बैंक है मेनली। बैंकिंग ऑपरेशंस उतना कहाँ है उसका? कितने लोगों का अकाउंट खुला है उसमें? हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा हम लोग नेशनलाइज बैंक में डाल रहे हैं, ठीक है? तो हाँ सर। अगर एफडीआई नहीं भी है हमारे कंट्री में, बैंकिंग एफडीआई नहीं है, तो भी इंडियन इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ता। दूसरे बहुत सेक्टर से हमको एफडीआई आ सकता है। और बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास इतने बैंक्स हैं कि फॉरेन बैंक्स बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इनसे भी मिल जाएगा। और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो है ना बैंक, लोन लेने के लिए, लोन देने के लिए, ठीक है? लोन लेने के लिए मतलब हम डिपॉजिट करते हैं बैंक को, और बैंक वही पैसे लेके फिर पब्लिक को लोन देता है। वो तो ये बैंक भी कर सकते हैं, खाली इंटरनेशनल बैंक पे थोड़ी आता है वो काम कर। दिस गाइस आल्सो नो। दैट्स इट। पॉइंट रखना अपने, स्ट्रांग पॉइंट्स। अरे कुछ भी नहीं है, योर पॉइंट्स आर वेलकम्ड। यस सर, यस सर। मेरा इमोशन इससे जुड़ा हुआ है, वैसा नहीं होता भैया। खैर चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पॉइंट्स पे डिबेट होना गुड। अब क्वेश्चन दे दो आपको करने के लिए। हाँ सर। एक 20 क्वेश्चन भेजा रहा हूँ, और पिछले क्वेश्चन पे आंसर भेजना, ठीक है? ओके। चलो ठीक है, आज सॉल्व करो 20 क्वेश्चंस। कल स्टेटमेंट हम लोग क्या क्या किए थे? कल स्टेटमेंट अजम्पशन किए थे ना? यस सर। तो कल करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और फिर असर्शन एंड रीजन, ओके? देन संडे वी कैन टेक अप अ न्यू टॉपिक। संडे को देखते हैं, मैथ्स करते हैं एक आध चैप्टर। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। आई एम सेंडिंग द बाय। क्वेश्चन।